بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں، ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم احمد۔ آج ہم اوور آل پاکستان کی بات کریں گے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی پولرائزیشن، پارٹیوں اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج اور پاکستان کے مسائل۔ اچھا، اب پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ایک طرف ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ انتہائی سطحی فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم وہ جب آستانہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اگر ملک کے حالات کو دیکھا جائے تو ان کے پاؤں تلے زمین نہیں۔ یہ حکومت جن کے سہارے کھڑی ہے، اگر ان کا سہارا ہٹ جائے تو یہ ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتے، اور ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ ہے دوسروں کی کردار کشی پر۔ مثلاً کل ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی اے پی پی یعنی عوام پاکستان پارٹی۔ اب کل وہ لانچ ہوئی، اس کے لیے یہ وقت صحیح ہے نہیں ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مہتاب عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاست میں نیک نامی کمائی۔ شاہد خاقان عباسی پر کوئی ایسے جرائم نہیں ہیں جس پر انہیں کرپٹ ثابت کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، وہ بزنس مین ہے، ارب پتی آدمی ہے، اور مجھے 1985 کے وہ انتخابات بھی یاد ہیں جب شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی صاحب مری سے الیکشن لڑے تھے پہلی مرتبہ، اور انہوں نے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور امیدوار کہا جا سکتا ہے، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب فرماتے تھے کہ یہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں، وہ تھے راجہ ظفر اللہ۔ تو مری اور پنڈی مریوں کا اپنا، راجوں کا اور عباسیوں کا علاقہ ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ جنرل ضیاء الحق کے سب سے مضبوط امیدوار کو انہوں نے شکست دی۔ راجہ ظفر الحق صاحب الیکشن ہار گئے اور شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی صاحب الیکشن جیت گئے اور اسمبلی میں سے۔ وہ تو پھر قسمت کی بات ہے، جب اوجڑی کیمپ کا سانحہ ہوا تو اس میں خاقان عباسی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شاید خاقان عباسی اس کے بعد پاکستان میں سیاست میں آئے۔ اس دوران میں انہوں نے اپنے بزنسز بھی شروع کیے، اور ظاہر ہے بزنس مین تو وہ ہیں، ان کے والد بھی بزنس مین تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے علاقے کی حلقے کی سیٹ کو چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال شاہد خاقان عباسی اس وقت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سوائے ایک مرتبہ کے وہ کبھی بھی انہوں نے اپنے حلقے سے شکست نہیں کھائی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل یہ چونکہ ارب پتی ہیں، جب انہوں نے ایک بات کی کہ ہم جو ہے اس ملک میں قانونی طور پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، چہرے نہیں نظام کو بدلو، انہوں نے نظام کو بدلنے کی پلاننگ کی ہے اور ایک پارٹی لانچ کی۔ اب اس میں انہیں کتنی کامیابی ہوتی ہے، کتنی ناکامی ہوتی ہے، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مستقبل کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے لوگ جو سیاست میں
बहुत बेहतर मकाम रखते हैं, नेक नामी के साथ रहते हैं, उनकी सियासत में इस तरह आमद बहुत अहम है। लेकिन अता तारड़ साहब कल हमारे एक वजीर इत्तलात हैं, कल उन्होंने मुखालिफाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन वो जारहाना नहीं थी शायद खाकान अब्बासी साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ कि जी ये तो बेवफा लोग हैं, ये खुद अरबपति हैं। तो अरबपति हैं तो ये उनका कसूर नहीं है, अगर वो अरबपति होने के बावजूद भी गरीब का दुख समझते हैं और उसके मसाइल हल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आए और अपनी कोशिश करें। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सब कुछ लुटा के भी अपने पॉइंट पर खड़ी हुई, अब उसको ये पता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस जगह गिव अप करेगी, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो इस तरह न हार मानने वाले हैं न डरने वाले हैं, खौफजदा तो वो किसी के होते नहीं। बहरहाल दूसरी बात ये कि 12 जुलाई का दिन बहुत अहम है और ये हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं हमारे जमात इस्लामी के अमीर, उन्होंने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। अब ये वो धरना होगा जो सबसे अहम होगा कि अब उसके बाद होगा क्या। लेकिन ये बात तो तय है कि जब पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म जमात इस्लामी कोई फैसला कर ले तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटती। हक दो कराची को, हक दो गवादर को और हक दो अवाम को, हक दो अवाम को, हक दो पाकिस्तान। ये वो जमात है जिसे आम लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए अवामी सियासत करनी पड़ी। तो अब इस वक्त जब से हाफिज नईमुर रहमान ने हलफ लिया है अमारत का मनसब संभाला है, वो यकीनन बहुत एक अच्छी मिसाल है। और देखें अब वो इसमें इस जगह तक जाते हैं क्योंकि उनके जो एक सेनेटर हमारे थे, साबिका सेनेटर, उन्हें जब जुल्म पर कातलाना हमला किया गया, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई इसी धरने में जो जमात इस्लामी की जो दूसरे दर्जे की क़यादत थी, पहले दर्जे की नहीं थी, तो उस पर भी वो लोग अपनी बात पर कायम रहे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा नाम, जब पीटीआई का पूरा हर तरफ शोर चल रहा था तो उस वक्त चित्राल से वो वाहिद जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते। तो इस तरह कुछ भी हो, अब एक तरफ हम एक ऐसे मकाम पर आ गए हैं जहां पाकिस्तान के मसाइल का हल हमने देखना है। अब पाकिस्तान के मसाइल का हल जब हमने शुरू की ये बात, तो उसमें जो पोलराइजेशन हो रही है, अब पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है। जमात इस्लामी हुकूमत, पीटीआई हुकूमत, और उसके बाद अगर हम देखें तो महमूद खान अचकजई, और फिर दूसरी तरफ जो बलोच कौम परस्त हमारी तंजीमें हैं। मैं तो बारहा कह चुका हूं कि हम बहुत मुश्किल में हैं और जिन लोगों के इख्तियार में है सब कुछ, वो किसी बीमारी का इलाज दरख्त के पत्ते काटकर उसका ठीक करना चाहते हैं, हालांकि अगर बीमारी का इलाज करना है तो जड़ों से करना है। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है और ये मुश्किल हमारी सबकी है, पूरे पाकिस्तानियों की है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए कि हम इस मुश्किल से खुद को निकाल लें, और जैसे परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया कि अब अज़्म इस्तेहकाम जो है वो ज़रूर होगा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। पता नहीं ये किस दिमाग की इख्तरा है और किसने ये
सुझाई है, वो कहते हैं ना कि अंधे को हरी हरी सूझती हैं। तो अगर इस तरह रहे तो शायद बहुत सारे मसाइल बढ़ेंगे, ठीक नहीं होंगे। बलूचिस्तान एक आतिशफशां बना हुआ है, केपी के आतिशफशां के ऊपर बैठा हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, किसी और का नहीं होगा। और कहीं और से कोई और लोग आकर हमारे इस मुल्क पर कब्जा कर लें, शायद ये हमें गवारा नहीं होगा, और फिर हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। सोचना उनका काम है, इत्तला देना हमारा काम है, मुतनब्बे करना हमारा काम है कि पाकिस्तान को बचाइए और अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल में ले जाइए, पीछे हट जाइए, और इस पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर कंप्रोमाइज़ कीजिए, रफा दफा कीजिए। क्योंकि ये जो सियासतदान हमारे बैठे हुए हैं, ये तो चूंकि इन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, और पैसे कमा कर ये लोग उसे बचाना चाहते हैं। अगर वो पैसे बचाने में कामयाब हो गए तो मेरे मुल्क के 2-3 हज़ार अरब रुपए ज़ाया हो जाएंगे, और पाकिस्तानी आम आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा, और सब टाएं टाएं फिश हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।